So, good morning. In this lecture, as we are discussing some important about NC machine. So, in this lecture, we will be discussing the basic features of NC machines first, and then we will move to the CNC machine, features of CNC machine. So, what we will discuss in the coming section: basic concepts. Components of NC machine. What are the basic components of NC machine? Classification, how we can classify the NC machine. Coordinates, different types of coordinates we are using. Component limitations, comparison between NC and ordinary machine. Methods to improve the accuracy. Direct numerical control machine, that is DNC machine. CNC machines, its features, and the last topic will be the adaptive control. So let us having the various features of NC machines. So before that we will be discussing the various components of NC machine. Okay? So NC machines is a machine that comes under programmable automation, and the various components we use in NC machine to perform the operations numerically are: number one, machine control unit, pehla machine control unit, second part program, and third is processing equipment or machine tool. So these are the basic components that we generally consider in case of NC machines. Going to the first, machine control unit. ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर का माइंड होता है, जैसे हम बात करते हैं CPU उसके अंदर होता है. Similarly we have machine control unit in case of NC machine, and the various terms we consider in this. So machine control unit, it is considered as the brain. It is called as the brain of NC machine, and in every NC machine we use MCU, that is machine control unit. Machine control unit हर एक NC machine के अंदर होती है, लेकिन पहले जो कन्वेंशनल मशीन थी उनमें ये NC मशीन MCU देखने को नहीं मिलता था. अब MCU में क्या क्या चीजें होती हैं? तो MCU जनरली कंसिस्ट ऑफ नेसेसरी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स टू जस्ट रीड द प्रोग्राम, गिव सम, जनरेट सम इंस्ट्रक्शंस, एंड will just control the operation of machine tool. So these are the various, this is what we are saying about the machine control unit. So machine control unit में क्या होता है कि कुछ हम input देते हैं, like we are just giving the part program and signals will be generated. Those signals will control the machine tool that is working over there. So mechanical action of the machine tools and other equipment, it will just control those actions. So this is basically the block diagram. It is not visible to you. I think it is clear now. So this is the schematic diagram of MCU, that is machine control unit. मशीन कंट्रोल यूनिट का ये आपका स्कीमेटिक डायग्राम है. इसमें देख लीजिए व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट. सो दिस MCU इज यूजुअली हाउस्ड इन अ सेपरेट कैबिनेट दैट इज प्लेस्ड नियर द मशीन. मशीन के पास ही एक अलग कैबिन बना होता है जिसमें हम MCU को माउंट करते हैं, एंड that can also move around, and this generally MCU generally controls जो भी टूल पाथ है, स्पिंडल स्पीड और वेरियस पैरामीटर्स हैं, डेप्थ ऑफ कट कितना मेटल पे कट देना है, कितना डेप्थ, फीड रेट कितनी होनी चाहिए. तो ये सारे मशीनिंग पैरामीटर्स हैं. इन सारे मशीनिंग पैरामीटर्स को हम कंट्रोल करते हैं MCU के थ्रू. ठीक है, तो वेरियस पार्ट्स हैं. टेप रीडर हो गया, ये कंट्रोल पैनल हो गया, ऑक्सिलरी फंक्शन हो गया, फीड रेट, इंटरपोलेटर, सर्वो मैकेनिज्म. अब देखो ये काम कैसे करता है. हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज जिसको हम पार्ट प्रोग्राम बोलते हैं, उस पार्ट प्रोग्राम को प्रिपेयर करते हैं. अब MCU में क्या होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट या NC मशीन की बात करेंगे तो उसमें टेप रीडर होता है. ठीक है, टेप रीडर में क्या करते हैं हम, कुछ होल्स बने होते हैं टेप रीडर में, और वो उन होल्स का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है. अलग अलग साइज के होल बने होते हैं, कहीं बंच में बने होते हैं, कहीं सिंगल बने होते हैं. तो वो होल्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहते हैं विद डिफरेंट साइज. ये जो टेप रीडर है वो सेंड किया जाता है, यहाँ पर सेंड किया जाएगा आगे. टेप रीडर से डेटा इनपुट किया जाएगा MCU के अंदर, और वो जो डेटा होगा, दैट डेटा विल बी रेड बाय टेप रीडर विल रीड द डेटा. ठीक है, टेप रीडर होगा, और टेप रीडर क्या करेगा, जो टेप होगा, पंच्ड टेप जिसको बोलते हैं, अभी जो मैं बात कर रहा था वो पंच्ड टेप की बात कर रहा था, टेप रीडर की नहीं. तो इससे पहले कंपोनेंट और रहेगा हमारा जिसको हम बोलते हैं पंच्ड टेप.
पंच्ड टेप। पंच टेप रहता है। पंच टेप क्या होता है? वो एक टेप होता है नॉर्मली जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के होल्स पंच रहते हैं, कहीं बंच में कहीं सिंगली। तो अभी जो मैंने बोला वो पंच टेप के बारे में था। तो पंच टेप से क्या होगा, पंच टेप हम फीड करते हैं इस टेप रीडर को। तो टेप रीडर क्या करेगा कि जो भी पंच टेप में प्रोग्राम सेट है, ठीक है, या जो भी इंस्ट्रक्शन सेट है उन इंस्ट्रक्शंस को ये डिकोड करेगा, ठीक है। तो ये टेप रीडर का सिंपल जो काम होता है उस टेप को, जो कि पंच्ड टेप है, उस पंच टेप को रीड करेगा। रीड करने के बाद क्या करेगा, जो डेटा, ये डेटा आगे की ओर क्या कर देगा, फॉरवर्ड करेगा। सो डेटा डिकोडिंग एंड कंट्रोल एरिया। तो जो भी डेटा आएगा उस डेटा की डिकोडिंग होगी कि क्या क्या चीजें, क्या क्या काम हमें करने हैं, टूल को क्या क्या काम करने हैं, कितना फीड रेट, ये सारे डेटा होंगे। इसके बाद जो भी पर्टिकुलर वर्क्स फंक्शंस होते हैं उन सारे फंक्शंस को क्लियर करेगा। इसके बाद एक आप लोग देख रहे हो नीचे बफर रखा रहता है। तो बफर का काम क्या होता है, एक्चुअल में होता यह है कि मान लिया कि टेप रीडर से डेटा रीड कर रहे हैं हम, तो हमें कुछ ना कुछ रिजर्व करके रखना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसा हो, जैसे दो चीजें होती है, एक तो टेप रीडर की स्पीड होती है, जो एक तो टेप रीडर की पर्टिकुलर रीडिंग स्पीड होती है और एक पंच्ड टेप की स्पीड रहती है। तो पंच्ड टेप किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव करता है, टेप रीडर उसको रीड करता जाता है। अब बाई चांस ऐसा हो कि टेप रीडर जो है हमारा, उस टेप रीडर की रीडिंग स्पीड कम है और पंच्ड टेप आपका तेजी से मूव कर रहा है, तो प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। वहीं दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बाई चांस ऐसा हो कि आपका पंच्ड टेप जो है वो तेजी से रीड कर रहा है और आपका जो टेप है वो मूव नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर स्पीड से, तो एक लैगिंग आ जाएगी, ठीक है। डेटा लैगिंग होगी, और जब डेटा लैगिंग होगी तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि मशीन टूल को जब इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी, नई मशीन टूल को जब नई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, आपका जो टूल है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका जो पंच्ड टेप है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। आप ये समझ लो, मैं सिंपली बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका पंच्ड टेप और यहाँ पर आपका टेप रीडर है। अभी सिंपली ये मान लीजिए, ठीक है। अभी मैंने मान लिया इसकी स्पीड मान ली कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, या 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है आपका पंच्ड टेप। पंच टेप 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, और आपका जो टेप रीडर रीड कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जो टेप रीडर है, जो टेप है आपका, वो टेप पंच्ड टेप है, बहुत कम स्पीड से आ रहा है और टेप रीडर जल्दी से मूव कर रहा है। तो पंच टेप अपनी स्पीड से, क्योंकि उतनी स्पीड से नहीं आ रहा जिस स्पीड से आपका रीडर रीड कर रहा है, तो होगा क्या कि डेटा लैगिंग होगी, वो रीड नहीं कर पाएगा या उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पाएंगी। किसको? आगे की कंट्रोल यूनिट को, मशीन टूल को। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि उसको आपने पार्ट प्रोग्राम उतने देरी से आप फीड कर रहे हैं। तो जब ऐसी प्रॉब्लम होगी, एक सिचुएशन होगी, तो आपका टूल रुक रुक के काम करेगा। पहले चला फिर रुक गया, फिर चला फिर रुक गया, फिर चला फिर रुक गया। आप सोचिए जब आप लिखते हैं अपनी नोटबुक पे, आप एक फ्लो में लिख रहे हैं, ठीक है, यू आर जस्ट राइटिंग इन अ फ्लो, उसकी वैल्यू अलग होगी। और जब आप रुक रुक के, मान ले पहले एक पॉइंट चला दिया, फिर रुक गए, फिर चला दिया, फिर रुक गए, फिर चला दिया, फिर रुक गए, तो आप देखोगे कि बीच में बहुत सारे डॉट्स देखने को मिलते हैं आपको। वो डॉट कुछ नहीं है कि एक तरीके से जो वर्क पीस है उसकी जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाती है, उसकी फिनिश बेकार हो जाती है, दैट इज नॉट गुड हाईली फिनिश। तो होगा क्या, प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड ए बफर। बफर का काम क्या होगा कि जो कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें पहले से स्टोर्ड रहेंगे, ठीक है, इस प्रोग्राम ने रीड कर लिया और रीड करने के बाद एक तरीके से रिजर्व मेमोरी की तरह काम करता है बफर। तो क्या करेगा बफर, क्या करेगा कि बाई चांस अगर टेप रीडर स्लो हो गया और आपका, सॉरी टेप रीडर स्लो नहीं, या टेप आपका स्लोली मूव कर रहा है, टेप रीडर उसको ठीक से रीड नहीं कर पाया, बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पाई टेप रीडर को, तो क्या होगा कि बफर में जो डेटा स्टोर्ड है, जो थोड़ा सा बफरिंग चल रही है, वो सीधे सीधे डायरेक्टली मशीन टूल को डेटा चला जाएगा, ठीक है। मशीन टूल्स को सिग्नल चले जाएंगे, मशीन टूल अपना काम करना जारी रखेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट विल बी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ बफर, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द बफर। तो कंट्रोल पैनल का काम यही रहता है कि बफर वगैरह, ये सारी मेमोरी डेटा कंट्रोल करना, के वेरिएबल जो आपके हैं उन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम आपका रहेगा। इसके बाद फीड रेट कंट्रोल एरिया, किस फीड से आपकी टेबल को मूव कराना है, टूल को मूव कराना है, ये फीड रेट एरिया आपको कंट्रोल करेगा। सिग्नल ये लेगा भी, सिग्नल ये देगा भी। इनपुट, इनकमिंग, आउटकमिंग का मतलब है कि ये यहाँ आएगा, इसको डेटा जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा और उस हिसाब से एडजस्टमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। इंटरपोलेटर का काम अभी बता देंगे आपको। इसके बाद सर्वो एरिया, सर्वो मैकेनिज्म, फीडबैक, किस टेबल पे आपकी पोजीशनिंग करनी है, टूल को किस पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना है, किस वेलोसिटी से टूल को मूव करना है, ये सारी चीजें जो होती हैं दैट कम्स अंडर सर्वो एरिया। सॉरी। इसके अलावा जो ऑक्सिलरी फंक्शन है MST,
टूल, फंक्शन, स्पीड, ये सारे वर्ड यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ड हैं। ये मशीन टूल को डेटा यहाँ से भी जाता है और यहाँ से भी जाता है, दो तरीके से जा सकता है। ये तो पोजिशनिंग वगैरह के लिए ये ऑक्सिलरी फंक्शन, जैसे एस स्पीड के लिए हो गया, टील किस टूल से आप काम कर रहे हो, तो ये पूरी तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया आपको कि किस तरीके से आपका टूल काम करता है, किस तरीके से आपका जो टूल है एनसी टूल या एनसी मशीन जो है वो काम करती है। टेप रीडर से डेटा रीड किया। अब टेप रीडर में क्या होता है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस टूल से काम करवाना होता है, जो काम मशीन टूल से करवाना होता है, उसको हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं जिसको हम पार्ट प्रोग्राम बोलते हैं, उस प्रोग्राम के थ्रू स्टोर कहाँ कर देते हैं, टेप के अंदर, पंच टेप के अंदर। वो पंच टेप रीडर रीड करता है, उसके हिसाब से उस डेटा को, प्रोग्राम को डिकोड करता है, और जैसे स्पीड कितनी रखनी है, फीड रेट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है, और आगे टूल को इंस्ट्रक्शंस भेज देता है। बाई चांस फीड रेट कितनी है और सर्वो मतलब वेलोसिटी किस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोजीशन करना है टेबल को, ये सारे काम ये सारे कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू, तो आपको बेसिक कंपोनेंट, आपको ये डायग्राम याद रखना है अपने माइंड में, दैट this is the basic schematic of machine control unit that we are generally using in case of NC machine. ठीक है, so most of the modern MCU is based on the microprocessor, or initially we were using a punch, it makes use of punch tape and tape reader to record to just transfer the program. आजकल वही है कि माइक्रोप्रोसेसर यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले पंच्ड टेप और टेप रीडर ही ये सारे काम करते थे। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, पार्ट प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी फीड और set of instructions that is provided to the machine tools. What are the functions that we want to perform by the tool. तो टूल को जो भी काम करने होते हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को हम फीड कर देते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू, फीड करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक सेट ऑफ ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। सो क्या होगा कि जैसे स्पिंडल लाइक इट इज अ प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डिफाइंस जनरली द कटिंग टूल पाथ, किस पाथ पे मूव करना है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, फीड रेट, टूल चेंजेस, कूल एंड ऑफ, कूल एंड ऑन, सो दैट मशीन टूल दैट कैन बी ऑटोमेटिकली कंट्रोल। तो ये सारी चीजें जब हम पहले से फीड करके एक प्रोग्राम के थ्रू उसको इनपुट दे देंगे तो उस हिसाब से वो आपका जो टूल है वो काम करते रहेगा। ठीक है, so the commands also define the position of the machine tool, machine spindle. So these things are you have to write in the part program. तो part program क्या होता है, आपको बस इतना लिखना है कि set of instructions होते हैं that defines the cutting tool speeds, spindle speed, cool and off, cool and on, tool change, feed rate. All these terms are just encoded in a particular set of instruction. So that the machine tool will be controlled automatically by these set of instruction we have supplied or we have given to the we have feeded to the machine tool. ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे जो जैसे ही आप क्या करोगे MCU के अंदर जो पार्ट प्रोग्राम को फीड करने के बहुत सारे मीडियम है तुम्हारे पास into the MCU. We have a number of options or number of methods to feed the data or पार्ट प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द मशीन टूल। मशीन कंट्रोल यूनिट को जो भी पार्ट प्रोग्राम हम फीड कर रहे हैं उसको फीड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। पहले हम जनरली पंच टेप को यूज करते थे जिसमें बहुत सारी एक स्ट्रिप होती थी, लॉन्ग स्ट्रिप, और जो लॉन्ग स्ट्रिप होती थी वो माइलर की होती थी। ठीक है, पेपर की या माइलर कोटेड एल्यूमिनियम, तो ये यूज किए जाते थे प्रोग्राम को कोड करने, मतलब प्रिपेयर करने के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया था पंच टेप। ठीक है, जिसमें पार्ट प्रोग्राम होता है किसकी फॉर्म में, होल की फॉर्म में। अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई, होल की फॉर्म में होता है ये सब कुछ। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ होल्स। और अब इन द प्रेजेंट एरिया जो कॉमन मीडियम है पार्ट प्रोग्राम को ट्रांसफर करने का टू द MCU और मैग्नेटिक कैसेट्स, फ्लॉपी डिस्क। अब तो फ्लॉपी भी आ गई थी, अब तो फ्लॉपी का भी टाइम चला गया है। ठीक है, अब क्योंकि NC मशीन यूज नहीं कर रहे हैं, CNC यूज कर रहे हैं, तो सारी जगह इन सारी जगह को किसने ले लिया है, कंप्यूटर ने। और कंप्यूटर में एक हम जनरली यूज करते हैं आजकल तो पेन ड्राइव यूज कर लेते हैं, छोटी छोटी चिप यूज होते हैं, उन सब चिप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट प्रोग्राम होता है उसको डायरेक्टली हम कहाँ सेव कर लेते हैं, मशीन की मेमोरी में। और NC मशीन पे जो NC मशीन होती है दैट डजंट हैव ऑन बोर्ड कंप्यूटर, ये याद रखना है। तो NC मशीन्स में कंप्यूटर यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मेमोरी को स्टोर करने के लिए इसमें कुछ मेमोरी जरूर रहती है जो कि पार्ट प्रोग्राम को स्टोर करेगी। ओके, तो इतना याद रखना है आपको व्हाट इज कि डेटा किस तरीके से MCU को फीड किया जाता है, किस फॉर्म में, पंच टेप किस मटेरियल का बना होता है, किस तरीके से कोडिंग की जाती है, होल्स होते हैं, कितने साइजेस होते हैं होल्स के,
तो ये है, ठीक है। तो पंच टेप की अगर हम बात करेंगे तो टेप पर पंच होल किए जाते हैं पंच टेप पर फ्लेक्सोराइटर के थ्रू। फ्लेक्सोराइटर एक टूल होता है जिससे पंच टेप पर होल डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट साइज के होल्स क्रिएट किए जाते हैं। दैट इज सिंपली द वर्क ऑफ, ये सब छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, इतना डिटेल में लिखना है। डायमीटर का होल कुछ नहीं, हाँ ये रहा। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ होल इन अ सर्टेन पोजिशन जस्ट रिप्रेजेंट ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो अगर कहीं होल प्रेजेंट है या नहीं है तो वो एक उसकी लोकेशन हमें सेट करनी होती है, किस जगह हमें होल क्रिएट करना है और कितने साइज का, ठीक है। दैट विल जनरेट सम बिट इन्फॉर्मेशन। सो द सर्टेन पोजीशन रिप्रेजेंट 1 बिट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई होल उस पर्टिकुलर टेप रीडर पे बना है तो उस टेप रीडर पे किस पोजीशन पे बना है, तो जैसे ही एक होल आएगा एक बिट टाइप की इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी। जो पार्ट प्रोग्राम है हमारा, जो एक मिनट इसको रफ कर लेता हूँ। पंच टेप पे सारी इन्फॉर्मेशन हम कोड करते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो एक पंच टेप होता है उस पर 8 कॉलम होते हैं, ठीक है। इसमें कितने कॉलम होते हैं, डायमीटर 8 यहाँ लिखा होगा, यूजिंग अ पंच टेप देयर आर 8 कॉलम्स ऑफ होल्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर 8 कॉलम रहते हैं। एक सिंपली अगर हम टेप की बात करेंगे पंच टेप पे, और जिसमें अगर कोई होल प्रेजेंट है या नहीं है तो वो एक बाइट, जैसे हम बाइट्स होती है बाइनरी डिजिट 0-1, इसी तरीके से एक होल की प्रेजेंस और एब्सेंस भी एक बिट इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब बहुत सारे होल्स होंगे हमारे पास तो वो एक पार्ट प्रोग्राम को कंस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ए नंबर ऑफ होल्स व्हेन प्रेजेंट दे विल कंस्टिट्यूट ए पार्ट प्रोग्राम। देयर आर अनदर कॉलम ऑफ स्मॉलर होल्स बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ कॉलम। तीसरे कॉलम और चौथे कॉलम के बीच में एक छोटे छोटे वाले होल होते हैं जो कि दीज आर फीड होल्स ऑफ डायमीटर। तो ये है कि एक तो 0.72 इंच के होल होते हैं जो बड़े होल होते हैं, और इनके बाद छोटे छोटे होल होते हैं जिनका डायमीटर इतना आता है। दैट आर जनरली यूज्ड टू गिव द फीड, ठीक है। ये फीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। फीड को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। बेसिकली ये आउटडेटेड चीज है थोड़ी बहुत, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में उस टाइम पे होता क्या था। आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि उस टाइम पे होता क्या था। तो अब ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं होना कि पंच टेप था, उसमें होल क्रिएट किए जाते थे, 8 कॉलम होते थे हर एक टेप के ऊपर, और जिसमें कुछ बड़े होल्स होते थे और कुछ छोटे होल्स होते थे, ठीक है। और एक होल जो था वो लगभग एक इंस्टेंस, एक बाइट को या बोल सकते हो एक बिट इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता था। एंड स्मॉलर होल्स वाज यूज्ड टू गिव द फीड, ठीक है। एंड दिस टेप रीडर वाज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो अब टेप का मटेरियल क्या हो सकता था, ए नंबर ऑफ टेक्निक्स वर यूज्ड टू जस्ट डेवलप एंड डिजाइन द टेप रीडर टू सेंस द होल ऑफ पैटर्न। अब पैटर्न जो भी आपका टेप रीडर होता है वो टेप रीडर टेप को रीड करता है, ठीक है। तो जो टेप रीडर होता है उस टेप रीडर को बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स हम यूज करते थे, फोटो इलेक्ट्रिक टेक्निक, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट फिंगर एंड वैक्यूम मेथड, ठीक है। तो ये तीनों टेक्निक्स हैं। ये तीनों टेक्निक्स में फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, एक सिंपली एक लाइट को हम गिराते थे और अगर होल से पास हो जाती तो ठीक है कि वहां पर वो शो कर देता है कि जो लाइट है अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली जाएगी इसका मतलब है कि बीच में होल है, तो वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा। वहीं अगर लाइट पास नहीं हो रही इसका मतलब वहां कोई होल प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको वो कोड कर लेता था और सिग्नल जनरेट कर देता था। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट फिंगर में क्या होता था, सिंपली टेप चलता था इस तरीके से और एक फिंगर रखी रहती थी जहां होल, और जैसे एक बीच में टेप चल रहा है और आपकी फिंगर उसके ऊपर है, ठीक है। अगर टेप में कोई होल नहीं है तो सिंपली नीचे वाले मेटल सरफेस से आपका कोई कांटेक्ट नहीं होगा फिंगर का, लेकिन जैसे बीच में अगर कोई होल होगा तो जो फिंगर होगी, इलेक्ट्रिकल जो फिंगर होगी आपकी, वो दूसरी सरफेस से कांटेक्ट में आ जाएगी और बता देगी कि यहाँ पर कोई होल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से वो उसको रीड कर पाएगा, ठीक है। एक वैक्यूम मेथड होता है जिसमें दिस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ वैक्यूम सेंसर दैट इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ होल। तो ये 3 मेथड थोड़े से पढ़ लेना है, ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है। जितना मैंने बोला ये वैसे आपको बस टेक्निक्स पढ़नी है, इस टेक्निक क्या होती है, 2-2, 3-3 पॉइंट इसके बारे में लिखने हैं बाकी ज्यादा कुछ नहीं लिखना। वैक्यूम मेथड क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। अब
अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे मेथड के बारे में बस एक एक दो लाइन पता होना चाहिए, नहीं भी हो तो आपको बस हेडिंग पता होनी चाहिए कि किस किस टाइप के या कितने जो भी इलेक्ट्रिकल कितने टाइप से कोडिंग हो सकती है, मतलब टेप रीडर जो होता है वो किस तरीके से, कितने मेथड है टेप रीडर को बनाने के, ठीक है, किस तरीके से वो रीड करेगा प्रोग्राम को। अब ये आगे वाली इंफॉर्मेशन है यहाँ से इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ जनरली द इंस्ट्रक्शंस आर फॉर्म। पहली बात तो देखते हैं जो बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं उनको हम बिट बोलते हैं। बाइनरी डिजिट्स जो होती हैं इधर 0 और 1, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द होल। तो होल अगर प्रेजेंट है तो ये 1 अदरवाइज 0 इंस्ट्रक्शन ये चली जाएगी एंड ऑन द टेप। इसके बाद जब रो ऑफ बिट फॉर्म अ करेक्टर है, जब बिट को एक पर्टिकुलर रो में हम अरेंज करेंगे तो एक करेक्टर बन जाएगा और हर एक करेक्टर, दैट करेक्टर में भी ये लेटर, ये नंबर और सम सिंबल, ठीक है। सबसे पहले बाइनरी डिजिट हर एक को क्या बोला जाता है, बिट बोला जाता है। इसके बाद बहुत सारी बिट जब फॉर्म होती है तो एक करेक्टर बनता है और बहुत सारे जब करेक्टर होते हैं तो उनको फॉर्म करके एक एनसी वर्ड बनता है, ठीक है। एनसी वर्ड में एन वर्ड आ जाते हैं, आपके जी वर्ड आ जाते हैं, एक्स वर्ड आते हैं, टी वर्ड आते हैं, एस वर्ड आते हैं। तो जब बहुत सारे हम करेक्टर को मिलकर के जैसे G80, G80 तो ये पूरा एक वर्ड हो गया। G एक करेक्टर है, G को बनाने के लिए बहुत सारे डिजिट्स का हमने बिट को यूज किया है। इसके बाद जब बहुत सारे वर्ड को हम किसी फॉर्म में अरेंज करेंगे तो वो ब्लॉक बनता है, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉक को कोड्स को हम जब एक रो में अरेंज करेंगे तो उसको ब्लॉक बोलते हैं और बहुत सारे ब्लॉक को मिला करके एक पार्ट प्रोग्राम बनता है, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपली समझा देता हूं, जैसे यहां लिखा है द रीडिंग हेड, जो टी है ये एक करेक्टर है। इस टी को बनाने के लिए कुछ बिट की रिक्वायरमेंट है। अब बहुत सारी जो करेक्टर को मिला करके एक वर्ड बनता है, तो जैसे THE बन गया, द बन गया, तो ये एक पूरा वर्ड हो गया। द रीडिंग ये एक अलग वर्ड हो गया। अब इन सबको जब एक पर्टिकुलर रो में अरेंज कर दिया गया एक पर्टिकुलर वे में, तो ये यहां से यहां तक एक पूरी जो लाइन होती है उसको ब्लॉक बोलते हैं और उसके लास्ट में एक टर्म लिखा जाता है EOB, एंड ऑफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हम अगला ब्लॉक लिखेंगे। तो हर एक ब्लॉक जो होता है, यहां पर हम ब्लॉक किसको बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर लाइन को, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लाइन जो होती है उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। और हर एक ब्लॉक के बाद हम एंड ऑफ ब्लॉक टर्म लिखते हैं, मतलब अब आपका यहाँ पर ब्लॉक एंड हो गया है। इसी तरीके से बहुत सारे आप ब्लॉक बनाएंगे और फाइनली बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर के एक पूरा पार्ट प्रोग्राम प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। जिस तरीके से लेटर को लिख करके वर्ड बनता है, वर्ड से बहुत सारे वर्ड को अरेंज करेंगे तो एक लाइन बनेगी, बहुत सारी लाइन को जब कंबाइंड करेंगे तो एक पैराग्राफ बनता है। तो वही जो पैराग्राफ होता है वही आपका पार्ट प्रोग्राम समझ लीजिए आप, ठीक है। समझ में आ गया। तो किस तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए कि बिट क्या होती है, बिट के बाद करेक्टर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स इट इज कॉल्ड वर्ड, NC word. A number of collection of a number of NC word is called block. A number of collection of blocks will form a part program. तो part program में ये सारी चीजें किन चीजों से मिलकर के बना होता है वो आपको you have to keep this thing in mind, ठीक है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। आपका अभी जो फंक्शन जो मैंने बोला बस वही लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी मैंने समझाया था ना पूरा डायग्राम वही है। जैसे टेप रीडर फीड द डेटा फ्रॉम द टेप इन ब्लॉक, तो टेप रीडर क्या करेगा, उसमें डेटा ब्लॉक की फॉर्म में फीड हो जाएगा। दैट इज इट रीड कंप्लीट डेटा ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम, जो भी टाइम उसको दिया गया उस टाइम के रिस्पेक्ट में ये इंस्ट्रक्शन कर लेगा रीड को। अगर जो टेप रीडर का है, जो टेप रीडर है आपका जो कि इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहा है, उसका साइकिल टाइम इज मोर देन मशीनिंग टाइम, मशीन साइकिल टाइम, ठीक है। दैट इज टाइम टेकन, दैट इज द टाइम टेकन टू रीड द ब्लॉक is more than the time taken to execute by the machine। जो मैंने आपको अभी समझाया बफर, कंसेप्ट ऑफ बफर मेमोरी या बफर का जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया वो ये है कि जो टेप रीडर का साइकिल टाइम है दैट इज मोर देन द मशीन साइकिल टाइम। जितने टाइम में आपकी मशीन कर रही है उससे ज्यादा टाइम टेप रीडर रीड करने में ले रहा है, तो होगा क्या, द मशीन कैन मेक इंडेंटेशन ऑन द वर्क पीस, ठीक है, ड्यू टू द टूल विल स्टॉपिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ईच ब्लॉक। क्योंकि जब आप उसको कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी तो डॉट बन जाएंगे वर्क पीस पर और आपका जो वर्क पीस है उसकी क्वालिटी जो हो जाएगी वो डाउन हो जाएगी, जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। टू अवॉइड दिस फिनोमिना वी प्रोवाइड बफर इन द MCU। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बफर इन केस ऑफ MCU।
मशीन कंट्रोल यूनिट में बफर का क्या काम होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर जो टूल का जो टेप रीडर का साइकिल टाइम इज मोर देन द साइकिल टाइम ऑफ द मशीन टूल, देन व्हाट हैपेंस, द टूल विल नॉट गेट कॉन्टिन्यूस इंस्ट्रक्शंस, दैट्स व्हाई some dots will be present over there that will try to spoil the quality of the workpiece or the product. तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार हो जाएगी। तो इस चीजों को करने के लिए हम बफर का काम करते हैं, ठीक है। तो जो भी मेमोरी होती है, एक बार में एक ब्लॉक रीड कर लेगा, वो बफर में स्टोर हो जाएगा, मशीन एग्जीक्यूट करती रहेगी वन बाय वन, ठीक है। एक बार में सारे ब्लॉक एक बार में नहीं होंगे, पहले एक ब्लॉक कंप्लीट होगा प्रोग्राम का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से वो प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है बाई चांस अगर मीन टाइम ऑफ एक ब्लॉक पढ़ने के बाद दूसरा, तो कुछ मेमोरी उसके अंदर स्टोर रहेगी। बाई चांस अगर टेप रीडर जो होता है वो रीड नहीं कर पाता है इंस्ट्रक्शंस को, तो जो बफर में पहले से जो मेमोरी स्टोर रहेगी वो डेटा सिग्नल भेज देगा किसको, मशीन टूल को, जिससे प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कितनी मेमोरी होती है, रैम प्राइमरी मेमोरी होती है इसके अंदर। इसके अंदर मेमोरी फीचर्स भी होते हैं। तो ये पहले तो हमने बोल दिया टूल के फीचर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम कैसे दिए, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम को बता दिया। प्रोग्राम के बाद पार्ट प्रोग्राम प्रिपेयर कैसे करते हैं, बाकी ये कंपोनेंट काम कैसे करते हैं, प्रोग्राम को फीड कैसे दिया जाता है। इसके बाद मेमोरी की बात करते हैं, तो इट हैज जनरली रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी, दो मेमोरी होती हैं। रैम वोलेटाइल, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है आपको कि क्या होती है। परमानेंट मेमोरी, स्टोर परमानेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि कंप्यूटर साइंस में आप लोग पढ़ चुके हो, वही दो पॉइंट लिखने हैं इनके बारे में। इन सब के बारे में दो कंपोनेंट पार्ट, दो पॉइंट लिख दोगे तो खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। स्विच ऑफ हो जाएगा। रोम क्या है, मेमोरी को स्टोर करता है। रैम जो होता है डेटा को टेम्परली स्टोर कर लेता है पार्ट प्रोग्राम को, और लाइट चली जाती है तो वो डेटा तुरंत फिनिश हो जाता है ना। तो यही सिंपली इसके अंदर होता है। रोम में जो स्टोर इन्फॉर्मेशन होती है वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। रिपीटेड फंक्शन जो होते हैं जैसे लाइन, होल ऑपरेशन, जो भी डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं वो यहाँ स्टोर रहते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली रैम, तो रैम और रोम के बारे में दो पॉइंट लिखने हैं। सो समटाइम सिंस एमसी मशीन जो होती है डजंट हैव एन ऑनबोर्ड कंप्यूटर, ए सेपरेट कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द कोड्स फॉर मशीनिंग ए पार्ट। तो इसके कोड के लिए अलग से कंप्यूटर की जरूरत होती है, और उस कोडेड प्रोग्राम को फिर हम मशीन कंट्रोल यूनिट में पंच टेप के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं, या मैग्नेटिक टेप हो गए या फ्लॉपी जो हो गई, उनके थ्रू हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये बेसिक है कि आपको इसमें लिखना क्या क्या है। पहले तो आपको लिखना है कि क्या क्या कंपोनेंट है। सो तवेंसी मशीन के जो भी कंपोनेंट है, पहला मशीन कंट्रोल यूनिट, क्या काम होता है मशीन कंट्रोल यूनिट का, किस तरीके से ये काम करती है, फंक्शन बफर का क्या काम होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट में प्रोग्राम कैसे फीड किया जाता है, टेप रीडर के बारे में दो चार पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज प्रोवाइडेड टू द मशीन टूल टू परफॉर्म दी रिक्वायर्ड ऑपरेशंस, ये लिख दोगे। इसके बाद पार्ट प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, और कितने होल्स होते हैं, और होल्स पर्टिकुलर होल का मतलब क्या होता है, होल का छोटे होल का काम क्या होता है, बड़े वाले होल्स का काम क्या होता है, और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए किस तरीके से मतलब टेप, पंच टेप जो भी होता है बनाया जाता है। अगर पंच टेप नहीं तो किस तरीके से हम जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद टेप रीडर का काम क्या होता है, वो सब चीज़ें। इसके बाद प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और मशीन टूल्स, तो जो आपका फाइनली टूल होता है जहाँ पर आपके फाइनल ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज अ फिजिकल कंपोनेंट। जो टूल होता है वो सारे काम करेगा टूल वहां से। तो यू कैन राइट मशीन टूल इज फॉर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, इट इज द फाइनल टूल that will perform the physical operation like cutting, you can consider machining operation like milling, drilling, knurling, boring, etc etc. so this is the work. तो आपको ये सारे पॉइंट्स के बारे में एक दो कुछ लाइन्स लिखनी है मशीन कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो ये आपके वेरियस कंपोनेंट्स हो जाएंगे, और ये डायग्राम बनाना बहुत कंपल्सरी है, ठीक है। अब इसके बारे में जो फाइनली अगर हम देखें कि प्रोसेसिंग इक्विपमेंट क्या है, तो ये है आपका प्रोसेसिंग इक्विपमेंट जिसको हम मशीन बोलते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है वो यहाँ बताया गया है। एक्चुअल में आपकी मशीन जो होती है वो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट होती है। फाइनली जो आपका टूल जहां लगा रहता है, टूल और वर्कपीस का जहां पर फाइनल कॉन्टेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और मशीन। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनसी इक्विपमेंट। एनसी इक्विपमेंट का पार्ट प्रोग्राम हो गया, मशीन कंट्रोल यूनिट हो गई, और ये लास्ट है आपका दैट इज फिजिकल कंपोनेंट, और यू कैन से प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और मशीन टूल या मशीन। So because this is the component that perform the final or useful work
For example, in case of NC lathe, the processing equipment is usually lathe machine. When we are excluding the NCO that will perform the actual or final machining operation. Okay, so this is basically how the program this typical NC machine work. ये उसका एक फ्लो डायग्राम है. This is also you have to just note down in your answer sheet. अगर पूछा जाता है तो देखो पार्ट प्रोग्राम क्या है. आपको पार्ट प्रोग्राम बनाना है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव prepared to give automatic feed. So when this set of instructions are called part of program, this part program that contains a certain number of information is sent to the machine control unit. Machine control unit just decode the program and just take the required output from that. It will calculate the speed, it will justify the feed rate, tool speed, spindle speed, coolant on, coolant off, door, and some other function are taken here, and this machine control unit will generate some signals, and then these signals are then sent to the machine, and according to the signal the machine tool will work and will finally will produce the product of required shape, size and other information. Okay, so we are going to end this lecture at this stage, and if you are having any doubt, I am